HEC के प्रोग्राम अचीवमेंट्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं HEC EDU TV की लाइव ट्रांसमिशन। SMIU स्टूडियोज से मैं हूं महगुल नादिर। आप हमारा ये प्रोग्राम HEC की वेबसाइट edutv.etc.gov.pk पर भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू सिंध मस्जिदुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का लीडरशिप प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है क्या, इस पे बात करने से पहले आएँ एक पैकेज मुलाहिज़ा फरमाएँ। SMIU launched its international leadership program in pursuance of its historical legacy of producing leaders for the nation. It is one of the flagship programs of SMIU that focuses on culture and educational exchange between SMIU and its various partner universities around the world. This program changes your real life. Most important thing is the openness with the breaking of stereotypes, but also the kind of a vision that has given me the wings. It is the time of interaction with different cultures, with different societies, and for that, the best way is to introduce and expose the students studying in universities to international cultures. These visits, they transform the lives of our students. There are people from all different kind of places, big cities, small towns, but we are all interested in putting the world together. It asserts leadership and gives us the opportunity to look at the things with a more practical and global approach. When you come back home, you're more energetic and you want to serve your country, you want to serve your society. It does not only serve your career, but you also contribute to the societal change, a positive one. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU. Thank you, SMIU, for giving me the opportunity. जी, तो आपने अभी ये लीडरशिप प्रोग्राम के हवाले से एक वीडियो देखी जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम की ग्लिम्पसेस दिखाई गई। इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मिस कुरतुलैन मेमन हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लीडरशिप प्रोग्राम की एज ए फोकल पर्सन काम करती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो हमसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके लीडरशिप प्रोग्राम्स पे। उसमें हमारे पास मिस अनमोल मेमन बैठी हुई हैं और उनके साथ मिस्टर हुनैन अमीन। सबसे पहले हम मिस कुरतुलैन मेमन की तरफ जाते हैं और हम उनसे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है मिस कुरतुलैन कि आप पहले मुझे ये बताएं कि बेसिकली what was the idea behind this leadership program, what was the main aim and motive that basically made it such a success right now? Thank you very much, Ms. Mahgul, for your introduction. So I would like to tell that the SMIU leadership program is actually the brainchild of our Honorable Vice Chancellor, Dr. Mohammad Rashid, who has conceived that idea of the leadership. Like leadership, actually इसके पीछे जो main purpose था to enhance the leadership qualities of our students, to groom them in such a manner that provide the more leadership to our country. So this was the basic objective behind it, to improve, to provide them the exposure, meeting with the leadership of the nation, social and interpersonal skills as well. This was actually to transform our students into the leaders for tomorrow. Thank you, Ms. Kutulan. Transforming the leaders for tomorrow. Anmol, why don't you tell us your experience throughout? And sabse pehle, if you'll mention where have you been and how did you find this leadership program? Did it really transform you as a leader at the end of the day? Oh yes, it did. I have been to national and international both of the programs. So for the national one, we visited Prime Minister House, President House, and we got to meet them. And along with that, we had other high-profile people to meet as well. And then on the international side, I was selected for the Turkey program. So we did
went to Turkey, and then we had a really great time. Not only because we were enjoying or we were exploring new places, but because that we went to different universities, and we saw that what their experiences were, how did they operated, right? और उनका किस तरह से उनका एजुकेशन सिस्टम होता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों से मिलना, उनसे बात करना, दिस इज़ ह्यूज. बिकॉज जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में स्टेप इन करते हो तो इट टेक्स एफर्ट्स एंड इट टेक्स योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट. तो आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली दैट वी वेंट आउट और हमने लोगों से बात किया. एंड जब आप वापस आते हो तो इट्स नॉट ओनली कि आप एक मज़ा करके आ गए एंड ऑल, बट यू हैव दैट एक्सपीरियंस. जब आप वापस आते हो तो यू शेयर इट विथ योर पेयर्स, विथ योर कलीग्स, और आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे बात करते हो एंड उनको भी पता लगता है. एंड दैट्स हाउ इट मोटिवेट्स. एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल सेल्फ, so yes, it has actually shaped my mind. आपको पता है कि you're now flexible, you're now getting attached to more of culture things, and it's not only आपका एक नहीं है culture, other people, आप comparison करते हो चीज़ों को और ज़्यादा improve करते हो. So basically, yes, I quietly agree that it is about shaping one's mind, especially the younger generation and the students that are involved in the program. Hunain, coming to you, I would like to ask you that how did you find it, the whole process, the selection and then going and actually being the part of it and now coming back to it and looking back at what actually happened in those 5 to 7 days, how it was? Before I could answer your question, I think it's binding on me to assert that only a leader can conceive such an idea. The way Miss Qurratulan has suggested that it was a brainchild of our VC. Only the people who have been there now can understand the value and the importance of such an exposure. आपने बात की दूसरी के टेस्ट का प्रोसेस जितना कम्पिटेंट, जितना रिगरस वो रहा है, उससे असल में कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है. you prepare yourself for the next endeavors in your life. तो जो हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स थे, फॉर एग्जांपल वी हैड टू रीड बुक्स. एक्चुअली शौक में कभी आप पढ़ते हैं बुक्स, कभी नहीं पढ़ते, किसी का शौक नहीं होता, बट इन दिस रिगरस प्रोसेस it was necessary for us to go through all these 7 books. उसके बाद उन बुक्स के हवाले से टेस्ट, उसके बाद करंट अफेयर्स के हवाले से लाइक एक ऐसे राइटिंग, उसके बाद आपके डेक्लेमेशन, उसके बाद इंटरव्यूज़. इन 3-4 फेजेस के बाद एक इंसान में कैपेसिटी बिल्ड होती है, चाहे वो फिर क्वालिफाई करता है टॉप पोजीशंस पे कि नहीं करता. अगर वो टॉप पोजीशन पे क्वालिफाई नहीं भी करता तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है. नाउ कमिंग बैक टू द ट्रिप इटसेल्फ, I have seen the changes happen there myself. I mean, I have seen things manifest before my eyes. तो अब मेरे पास एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है कि दुनिया में क्या होता है, क्योंकि इस्तांबुल एक इंटरनेशनल हब है. इंटरनेशनल हब इन अ वे कि पीपल डू विजिट देयर, और दुनिया की खूबसूरत तरीन सिटीज़ में से एक है. और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ. तो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई हैव लर्नड अ लॉट. सीइंग इज लर्निंग, ऑब्जर्विंग इज एनालाइजिंग. तो आई हैव बीन थ्रू दिस. आई एम Thank you so much, Hunain. जैसे Hunain just touched upon the selection process, so why don't you just define us briefly कि क्या process था, किसके through these students were able to avail the national and international leadership program? Actually, this is the SMIO leadership program and it comprises of the 3 phases. सबसे पहले एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं. उसमें हमारे रिटन टेस्ट में एक इंग्लिश कॉम्पिटेंसी हम उसको भी चेक करते हैं. देन एज ही सेड, एज द हुनैन हैज़ आल्सो कोटेड, दैट द करंट अफेयर्स को भी हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं. एंड द सेकंड पेपर जो हमारा कंप्राइज करता है, दैट इज़ होली सोली फ्रॉम द 7 बुक्स, जो हम उनको एक लिस्ट ऑफ द बुक्स देते हैं. दे हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दीज बुक्स एंड द पेपर कैम फ्रॉम दीज बुक. तो ये जो टेस्ट कंडक्ट होता है, इट इज़ फ्रॉम दी थर्ड पार्टी. लाइक हम कोई भी थर्ड पार्टी टेस्टिंग की थर्ड पार्टी को लेते हैं और उनसे ये कंडक्ट करवाते हैं ताकि इसमें फेयर हो जाए बच्चों के लिए, और जो है वो उसमें कोई आपकी डिस्क्रिपेंसी नहीं है. एंड द सेकंड फेज गोज विद द डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट. तो उसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स जज करते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या स्पीकिंग स्किल्स हैं और किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स, एंड हाउ दे रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन. एक्चुअली दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी. तो हाउ दे विल गोइंग टू बी रिप्रेजेंट देमसेल्फ. और तीसरा हमारे पास आ जाता है एक पैनल डिस्कशन या पैनल इंटरव्यू टाइप, जिसमें हम एक बच्चों का भी इंटरव्यू कराते हैं और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं ताकि उनके पास अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी हम रिजॉल्व कर सकें.
लाइक बहुत सारे पेरेंट्स के बाद में कंसर्न ये होता है कि हम अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं कर सकते, दे आर द मोर फोकस्ड अबाउट द गर्ल्स के जो जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वी हैव बीन लाइक कि 50% मोर देन 50% जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होती हैं वो हमारे पास गर्ल्स होती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं. सो एंड सो फार वी हैव लाइक 200 अगर स्टूडेंट्स हमारे नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम और अराउंड 100 अबाउट 100 हमारे इंटरनेशनल पे जा चुके हैं, तो इसका 50% लाइक 150 गर्ल्स हैव ऑलरेडी बीन visited on the national and international. So Anmol here is representing the 50%. Yes. Yes. So Anmol, how was this whole experience from a female perspective? You know, as Kudlan just touched upon, you know, our families are a bit conservative. We are still from that part of the society where there is bit hesitation, you know, when it come up ke you'll have to send your daughters to the trip. So how did your parents, you know, took about it, and were they excited? Were they same supportive, or no, you faced something? They were pretty supportive, but starting from the very beginning, you have to come across a lot of things, right? You have to convince them that yes, I'm doing it and it's no wrong, and it's all, you know, supported by the university and all of that. But my father was really excited, I would say, because he was like on his peak. Even when I was going, he had brought, you know, stuff and all, but on a positive note, they never stop me from being me. They never tell me to, you know, stop doing something because they don't like it. So I like it, like, you know, like how they have always been supportive about the programs. And again, my mom, my father, you know, my dad, they were more excited than I was. Even my brothers, my sister, you know, everybody around me was excited, not only me. And again, it's because of the university. If it was not there, I probably wouldn't have gotten the chance. But yes, everybody was supportive, and yes, there are people who do not, you know, who everybody has their own perspective. So there are people who do not appreciate it. But again, if you have a good supportive family and an institute like this, which can, you know, give you endless opportunities, and you have everything safe, you know, you're traveling and you're all safe. It's not that कि आप travel कर रहे हो, लड़की हो या even लड़के होते हैं तो भी security concerns होते हैं. So it's not that कि आप कोई भी safety issue नहीं होता है ऐसा. And even if you have any problem which doesn't occur, but you have people to talk about it, you know, you get it resolved on the spot. So this is great. I mean, not everywhere, it doesn't happen everywhere. So I'm really thankful for that. Yeah, that does make a sense, because if you have that support system around you, that do help you to keep moving. So Hunain, I just wanted to ask you that you must have applied for this process, and then you have been through the, you know, rigorous process which you have just mentioned. So what was that motivation, you know, that driving force that pushed you and you really wanted to do that? Because I'm pretty sure that's a lot of hard work and consistency, and doing that with your education is in fact a challenge, you know, managing both the things at the same time. The motivation was solely the competition in it. I just wanted to find out where I stand in my personal capacity. I mean, the competition was not from my other counterparts, but my own self. I mean, if I apply for something, if I sign up for something, can I actually make it happen for myself? That was the competition. If I can make it or not. तो जो भी rigorous process था, मुझे ये देखना था कि जो standard university ने set किया हुआ है, क्या मैं उस पर पूरा उतर सकता हूँ कि नहीं. और मुझे क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स होते हैं और सब आपका जो कंपटीशन होता है वो भी यूथ से ही होता है, तो आपको नहीं पता कि हु स्टैंड्स वेयर. तो मेरा हमेशा से ये था कि आई वॉज नॉट एक्चुअली थिंकिंग टू गेट द फर्स्ट स्पॉट. मुझे सिर्फ अपने आप को चेक करना था. So did you get the first spot? I did not, but I did land in the first 10. Yeah, because you mentioned it quite several times, so I thought maybe ask this. No. Okay. I mean, I wish I did, but But nevertheless, at least you have been through the process. So with that note, that SMIU leadership program is in fact self-grooming and empowering a student at the end of the day. So with that note, we'll take a short break and we'll come up with more exciting experiences. वेलकम बैक जी. जैसे हमने इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में बात की, नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में बात की, अभी हम इससे ज़्यादा कि हम इन चीज़ों के बारे में और डिस्कस करें और इनके एक्सपीरियंसेस जानें, पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के हवाले से.
जी, तो अभी अभी आपने एक वीडियो देखी नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के हवाले से। सो SMIU दोनों प्रोग्राम्स करवा रहा होता है, नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम भी, इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम भी। फ़िलहाल मैं कुरतुलैन से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों प्रोग्राम्स के बीच में, वाई नेशनल, वाई इंटरनेशनल? एक्चुअली जो नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम है उसमें हमारा ये फोकस होता है कि हम अपने बच्चों को टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री से मिलवाएं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं टॉप लीडर्स ऑफ द पाकिस्तान, टॉप स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूशंस है वो आ जाते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एंड द अदर प्लेसेस विच आर द रिनोन, as well as the with the other ambassadors we are also having the sessions with the ambassadors as well जो different countries के होते हैं। It's actually the 7-day process, 7 डे का एक विजिट होता है जो इस्लामाबाद बेस्ड होता है, वहीं पर बेस्ड होता है, और वहाँ पर जो भी टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री होती है उससे मुलाकातें होती हैं हमारे स्टूडेंट्स की, एंड द सेकेंडली दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट देयर वर्किंग पैटर्न्स क्या हैं, हमारी डिफरेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस के उनकी क्या वर्किंग सिनेरियोज़ हैं, और उनके क्या हमारे पर टॉप लीडरशिप की क्या ऐसी एबिलिटीज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं जो वो लर्न कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। दिस इज़ दी नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम। एंड द इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द जो हमारे डाइवर्स कल्चर्स होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, उसमें हम अपने बच्चों को डिफरेंट इंटरनेशनली विज़िट करवा के उनको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हाउ वी आर सिमिलर टू एवरीवन, like to bridge the gap between the different diverse culture which are happening around the world. So this is the main objective, and these are the main difference between these two. And so far we have covered so many state institutions, many top leadership like the President, the Prime Minister, and it's all because of our Honorable Vice Chancellor. Due to his efforts we have been able to meet the such dignitaries of our country, as well as the what we have visited so far. Like we have arranged the 7 international visits, 3 to the Turkey, 1 England, and the one is to the UK, one is to the Malaysia, and the 2 are to the China. So these are concluding these are the 7 trips which we have arranged towards the international leadership program. I'm pretty sure कि इतना short time span में just in last 6 years or 7 years? Yes. Last 6 years the university is able to have such successful national and international leadership program, which is commendable, which is under the leadership of Dr. Mohammad Ali Sheikh, the Vice Chancellor of this university, who has provided this opportunity to these young leaders. So just talking about the same thing, national leadership program के हवाले से, जैसे we have talked and we have discussed that you might have also visited the President of Pakistan and the Prime Minister, and you know what is it like to be in the presidency or meeting that high dignitaries of the country? So what was your experience, Anmol? Starting, you know, like when we were taking off the flight or something, so everybody was like, you know, Pakistan के Prime Minister से मिलेंगे, President से मिलेंगे. So it seemed like, हाँ ठीक है जा रहे हैं मिलेंगे. But the moment we went in, for me personally, the moment I walked in, it was surreal. Like I could not imagine meeting the Prime Minister of Pakistan or even the President or even going to the Supreme Court, because we, you know, as simple civilians, you are not allowed there. You have to, you know, have authorization and all that. So I'm really grateful to Dr. Mohammad Ali Sheikh that he has given us this opportunity. And yes, it was all surreal, but it has brought that, you know, confidence in us that we can now stand anywhere and speak about anything, because it's like you have your own, you build your own confidence. It's आप लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो, बिकॉज आपने देखा है, यू हैव सीन सच ग्रेट लीडर्स एंड यू पर्सनली मेट देम. दिस इज ह्यूज. एंड उसके बाद उन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना एंड देन उनको दूसरों को भी सिखाना. इट डजंट एंड देयर कि आपने देखा, आप आ गए, यू नो, यू स्टॉप्ड इट. नो, यू कम अप एंड यू शेयर विद योर पेयर्स अगेन दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, एंड आप अपने साथ अपने इवन यू नो यू टीच इट टू योर यंगर सिबलिंग्स या जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग हैं. तो द लर्निंग द लीडरशिप, इट डजंट स्टॉप, बिकॉज लीडरशिप नेवर स्टॉप्स. And if you become one, you have to create more of them. This is what I believe. So speaking of the chain reaction, you know, जैसे दिए से दिया जलता है, and empowering and then confidence, जैसे Anmol touched upon, I want to ask you, Hanan, that how would you define this? How would you define this journey? What was that one thing that you picked up from this and you think, you know, I'm going to spread this wherever I go? जो एक चीज़ अगर मैंने सीखी है तो वो ये सीखी है कि आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है. आपको डिसेंट भी एक्सेप्ट करना पड़ता है. वो चीज़ें जो आप आज तक जिन पर आपकी कन्विक्शन रही है
वो चीज़ें चेंज होती हैं जब आप दूसरे माशरे में जाते हैं, तो आपने अपने अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करनी है, वो कैपेसिटी पैदा करनी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, और यही आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करती है चीज़ कि यू एक्चुअली बिगिन टू बिलीव दैट things happen differently as well. I mean, there is more to the world than you have perceived. तो मेरे ख्याल से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि एक इंसान को कंप्लीट होने के लिए ये सबसे एडमिट करना पड़ता है कि देयर इज़ मोर टू द वर्ल्ड देन देयर आइज़ कैन सी। और यहाँ जाने के बाद हमें अंदाज़ा भी हो गया, क्योंकि अगर हम टीवी पे भी वो चीज़ें देखते रहें तो हमारा एक वो एंगल रहा है जो टीवी हमें दिखाना चाहता है, लेकिन एक पूरा होल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए इट्स बेटर इफ़ यू विजिटेड देयर योरसेल्फ। तो अब चूँकि वो पार्ट हो चुका है, इट हैज़ ट्रांसपायर्ड इन माई लाइफ, तो अब मुझे समझ में आता है कि आपको अगर अपने अंदर डेप्थ पैदा करनी है, अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर। So basically expanding your horizons. Exactly. And acceptability. Exactly, to put it. Yeah, so Kurtulan, moving on towards you, I just wanted to ask that बच्चों ने अपने confidence build किया with this program, they have been empowered enough, now they're also talking about expanding their horizons. So what was actually, was it the same way you have put it out when the program was being initiated, or when Dr. Saab come up with the idea and when you wanted to work on the same thing? Was it the same concept, or was it just to enhance their leadership qualities? Thank you, Ms. Fagul. Actually, we had the same idea. We had the same idea to enhance the leadership qualities among the students, to enhance their skills in such a way that they provide the leadership to the country, the young leadership in our country. So they should enhance their innovative skills, their commitments, their language skills, their communications. So we have designed this program in such a manner, and we have also organized this program in such a manner that they get an opportunity to experience the practical environment of our country, as well as to learn from it what could be the changes or the improvement we can make in our society. So this was our basic purpose, that how to improve the future growth, or how to contribute in the future growth of our country, to produce the leaders, as I already said that to produce the leaders for tomorrow. So that's why we are enhancing their skills, we are incorporating the leadership skills into them, so they would be able to contribute their part in our society. This was the basic objective of this program. And we are, alhamdulillah, we have achieved so much so far, and we have seen all the observations which we have designed. We have found that in our students, we have found the commitment after they return, after undertaking these trips, they have changed so much in their personality, in their way of thinking, in their commitment, in their innovativeness, in their speaking skills, and how to present, in their confidence, and how to represent the institutions. So many changes we have found in our students. So it means that हमारा जो मकसद था एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने का, the basic purpose was to transform a young, जो स्टूडेंट एक आता है हमारी यूनिवर्सिटी में, रॉ स्टूडेंट्स, and then polishing it. Exactly, उसको पॉलिश करके एक हमें जो लीडर बनाना है, उसमें हम लीडरशिप क्वालिटीज जो इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह we have No doubt, achieved the so. efforts are commendable. So just moving on, just as Kurtulan touched upon societal change, transforming someone to doing, and doing something for the society, the sustainability that we are talking about right now. So I just wanted to ask you one thing, that what was that one thing you did after that leadership program was because of that leadership program? There are a lot of things I have learned in the leadership program, but one thing which is really close to my heart, this is like girl-child education, because we see a lot of people raising their daughters or whatsoever, but when it comes to education, or when it comes to promoting them or their skills, people stop them. So this is what my motive is, and inshallah I'll try to bring it even more in the future, that I can work for girl child. I mean, it's not only because you're just giving her birth and this is it, you're providing her food, this is it. No, it is not. You have to provide her with complete education and let her be free, let her do whatever she wants to do. And since my father has always been supportive of me, he has never stopped me from doing anything, so I would want people to actually improve it. I would want them to know that
it's not only a son's responsibility to take care of the family or whatsoever. You have to raise your daughters equally as your sons. So yeah, I mean, when you go out, you see people, you know, even when we go outside of Pakistan anywhere, we did go to Turkey, or you know, I've been to other places as well. It's just that men and women are equal. It's like you don't have any differentiation between them. You know, you're getting equal pay, you're getting equal opportunities. We kind of here have this thing कि you know लड़की है तो थोड़ा सा इसको कम दो या you know, but I'm not saying कि सिर्फ opportunities कम है. Of course हमारे पास फिर perks भी ज़्यादा हैं being a girl. Because women can't. Yeah, we do have women perks as well, but yes, we should have equality, you know, and then you and as a woman you have to let go of the perks as well. Yeah. You cannot hold on Because to it's the all perks. about balance. It's all you about have to, you know, let go of things and then take opportunities. Yeah. This So is what it speaking of opportunity and letting go, so what is that, you know, Hunain, societal change that you would like to see or you would like to work on based on your experiences of leadership program, and that you think, you know, this is how it should be, or this is how I can play my part? How and what I can contribute Yeah, to exactly. societal change. I think दुनिया में मैं अकेला नहीं आया, और जब चूंकि मैं अकेला नहीं आया तो जो मैंने सीखा है वो एक कलेक्टिव नॉलेज जो है दुनिया की, उसमें से जो मैं पार्ट ले सका वो लिया है मैंने. तो बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उन्होंने ब्रिजिंग का काम किया है. मतलब चीज़ें मैंने सीखी हैं लोगों से देखकर, लोगों को करता हुआ देखकर, लोगों का लिखा हुआ पढ़कर, लोगों का हवा सुनकर. तो यही काम अगरचे मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा तो ये सोसाइटी जमूद का शिकार हो जाएगी, एक फ्रीज आ जाएगा जो कि हेल्दी नहीं है. तो अब जो मैंने सीखा है, जो मैं देख चुका हूँ अपने लिमिटेड एक्सपोजर में, और अपने लिमिटेड एक्सपोजर में, अपनी ऑब्जर्वेशन में मैं जो सीख चुका हूँ, अब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको आगे पहुँचाऊँ. अब मेरे आगे पहुँचाने में ज़ाहिर है मेरा अपना परसेप्शन शामिल होगा, मेरे अपनी आइडियोलॉजी शामिल होगी, मेरा अपना एंगल शामिल होगा उसमें. तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि दुनिया के पास एक एंगल, एक परसेप्शन और एक आइडियोलॉजी का इजाफा हो जाएगा. I mean, people now can choose from more options than they could have chosen before me. तो I think ये हमारी ड्यूटी होती है कि जो हम सीखते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें ब्रिजिंग का किरदार अदा करें. क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आप कोई नॉलेज कंसीव करते हो लेकिन वो कंसेप्शन भी दुनिया को देखकर नज़र आती है. तो इट्स बाइंडिंग ऑन यू टू ट्रांसफ़र दैट, टू उसको आगे पहुंचाना ही आपका फ़र्ज़ है. और मैं ये समझता हूँ कि इस टूर के बाद मेरा जो एक्सपोजर थोड़ा सा फर्दर वाइडन हुआ है, उससे मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग इससे महरूम रहे, या जिन लोगों का इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनता है, उनको मैं पहले से आगाही दूँ ताकि वो मुझसे बेटर एक्सपीरियंस ले सकें. और यही हुआ है. आज तक फिज़िक्स जो हम पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, वो लोगों से होते होते इतनी फ़िल्टर हुई है ना. अगर हर कोई ये कहता है कि नहीं यार मैंने सीख लिया लेकिन मैं किसी को बताऊँगा नहीं, तो वी वुड हैव लिमिटेड एस्पेक्ट्स इन लाइफ. तो इसी तरह जब लोग पढ़ते हैं तो एक्सपोजर्स बढ़ने चाहिए, परसेप्शंस बढ़ने चाहिए, एंगल्स बढ़ने चाहिए, आइडियोलॉजीज बढ़नी चाहिए, और इसी तरह आपके अंदर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द डिफरेंस वो भी बढ़ना चाहिए. तो आई थिंक मेरी जिम्मेदारी यही है कि अब मैं उसको ब्रिज करूँ आगे और आगे पहुँचाऊँ. Thank you so much, Hunain. That was briefly said. With that, we are going to take a short break, और उस बीच में we might have a change in the guest, and then we're gonna come back with some more students to talk about their experiences. वेलकम बैक जी. अब हमें पैनल में दो और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें मिस सुमन है जो दोनों हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर चुकी हैं नेशनल इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम. उसके साथ हमारे साथ बैठे हुए मुशाहिद हुसैन शाह, और वो भी हमारे दोनों प्रोग्राम्स का हिस्सा रह चुके हैं. स्टूडेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं अपने प्रोग्राम की फोकल पर्सन मिस कुरतुल मीमन से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हमारे जितने भी इंटरनेशनल विज़िट्स हुए हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU साइन हुए होंगे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी कोलैबोरेशंस हुई होंगी, तो आप हमें कुछ उसके बारे में बताएंगे. कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का विज़िट्स होते हैं, या किस तरह से वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं? एक्चुअली थैंक यू मिस मागुल. एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो विज़िट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल विज़िट्स होते हैं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उसका एक मैंडेटरी पार्ट होते हैं.
तो स्टूडेंट्स वो एक्सपीरियंस करते हैं कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें क्या वर्किंग पैटर्न्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर होता है, ताकि वो चीज़ें वो वहाँ से सीख के आएँ और यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करें। सो फar जो हमने विज़िट की हैं चाइना की, हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो कोलैबोरेशन जो हमने MOU साइन किया है वो तो 10 यूनिवर्सिटीज़, मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज़ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमारा MOU ऑलरेडी साइंड है। उसमें से 2 हैं जिनसे हमारे पास एक प्रोग्राम से मैच्योर हो चुके हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के। 2 यूनिवर्सिटीज़, एक हमारी सैया में सैया यूनिवर्सिटी है और दूसरी है हेनान ट्रॉपिकल ओशन यूनिवर्सिटी। 2 ग्रुप्स भी हम वहाँ पर ऑलरेडी भेज चुके हैं, एक फ़ीमेल स्टूडेंट्स का, एक मेल स्टूडेंट्स का, जो उन्होंने वहाँ पर स्टे किया और एक अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द मंथ उन्होंने वहाँ पर जाके कंप्लीट किया। All the expenses, like the most of the expenses were borne by the university. Students ने वहाँ पर जाके जो उनके daily expenditures थे वो उन्होंने वहाँ पर bear किए थे। Otherwise, university has supported them as much as we have them supported. So this was the Chinese universities. अगर हम मलेशिया में आ जाते हैं तो वहाँ हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हैं, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कोलालमपुर आ जाती है और हमारे पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया आ जाती है। एंड वी हैव यूज बीन विजिटिंग दीज यूनिवर्सिटीज़। वहाँ हम जाते हैं, विजिट्स करते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वहाँ के वर्किंग पैटर्न्स देखते हैं। सो वी आर रनिंग लाइक हम उनसे म्यूचुअल डिस्कशन में हैं, म्यूचुअल प्रोग्राम्स के लाइक स्प्लिट PhD और दूसरे प्रोग्राम्स के भी हम उनसे कोलैबोरेशंस में अभी अंडर डिस्कशंस ही हैं। मूविंग फर्दर जो हमारे टर्की में हैं, हमने ऑलरेडी 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ से MOU साइन कर लिए हैं। डिफरेंट हमारे जो उनकी स्टेट्स हैं उसमें लाइक अंकारा, इस्तांबुल तो हमारे और हमारा कोनिया, तो इसमें डिफरेंट स्टेज में हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किए हैं। एंड वी हैव बिन विजिटिंग लाइक कि हमने 5 से 6 यूनिवर्सिटी हमने 2 से 3 ट्रिप्स में, जो टर्की के हमारे 3 ट्रिप्स हैं उसमें हमने विज़िट की हुई हैं। तो इसी सिमिलरली लाइक इसी पैटर्न पे हमारे वहाँ पर विजिट्स होते हैं, हमारे पास सेशंस होते हैं। एंड वी आल्सो हैव द 1-to-1 मीटिंग विद जो उनके हायर अप्स होते हैं, जो उनकी हायर मैनेजमेंट होती हैं, तो ताकि हमारी कोलैबोरेशन डिस्कशंस भी होती हैं उनसे कि हाउ टू मूव फर्दर विद देम। एज वेल एज जो काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन इन टर्की है, उससे भी हमारे VC साहब की बहुत सारे अच्छे उनके वहाँ पर ताल्लुकात हैं और वो वहाँ से उनसे मिलके ही ऑल्सो रिसेंटली हैड द मीटिंग विद दी जो काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे, और उनकी काफ़ी डिस्कशंस हुई लाइक ऑन द डिफरेंट वेरियस रिसर्च एंड द एकेडमिक प्रोग्राम विच वी आर रिसेंटली वर्किंग ऑन। जो मलेशिया का हमारा विज़िट था उसमें भी हम मलेशिया की जो काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन थी उसमें भी वहाँ पर भी हमारा विज़िट हुआ हमारे डेलीगेशन का, एंड दे हैड द वेरी फ्रूटफुल डिस्कशंस ओवर देयर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैम जो हमारी UK की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हैं लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ द डंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रेडफोर्ड, जिनसे हमारी अंडर डिस्कशंस हैं। हम 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं UK के जिससे हम कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे डिस्कस करते रहते हैं ताकि हम उनको और भी मटीरियलाइज़ कर सकें और मैच्योर कर सकें इन नियर फ्यूचर में। सो दीज आर दी समथिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके अलावा कुछ USA में, कुछ नाइजीरिया में हमारी कोई यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वी आर इन कोलैबोरेशन विद देम एंड वी आर रनिंग द सोशल, वी आर रनिंग इन कोलैबोरेशन एकेडमिक्स और रिसर्च, इस तरीके की हमारी कोलैबोरेशंस उनसे के साथ कंटिन्यू रही हैं। ठीक है मिस कृष्णन, थैंक यू सो मच। मूविंग जस्ट टॉकिंग फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस, सुमन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कौन से ट्रिप का हिस्सा रह चुकी हैं और आप कौन सा, अगर आप इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में थी तो विच कंट्री डिड यू विजिटेड? मैं दोनों इंटरनेशनल और नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम्स का हिस्सा रही हूँ। इंटरनेशनल प्रोग्राम में जो है मैं टर्की के प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपका जो लीडरशिप प्रोग्राम था उसमें पूरा आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई जस्ट वांट टू हैव अ जस्ट आउट ऑफ इट, लाइक व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस थ्रू आउट दैट लीडरशिप प्रोग्राम और हाउ इट चेंज्ड यू? Like you are getting a chance to see the world of outside, कि मतलब कैसे पाकिस्तान के बाहर, आपके कंफर्ट जोन के बाहर लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वहाँ की चीज़ें आप ऑब्जर्व करके आते हो और यहाँ पे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी जो चीज़ें हैं जो टर्की में इतनी स्मूथली चल रही हैं, नो ट्रैफिक इशूज़, नो वेदर इशूज़, और यहाँ पर वो क्यों नहीं है। तो वी आर नाउ एबल टू डिटेक्ट द रीज़न कि क्यों, क्या डिफरेंस है जो हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो इतना स्मूथली लेके जा सकते हैं। तो एक जो एक्सपोजर आता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो और ऑब्जर्व करने लगते हो। दैट इज़ व्हाट द बेसिक थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस लीडरशिप प्रोग्राम। सो सुमन की बात को आगे बढ़ाते हुए दैट द एक्सपोजर शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंड लुकिंग एट द अदर यूनिवर्सिटीज़ और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू हैव नोटिस्ड वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एंड देन दैट यू फील इज़ लैकिंग हेयर
in Pakistan? Mushahid. हम जब टर्की में गए थे तो वी ऑल्सो विजिटेड द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टर्की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल में जब हम गए तो मैंने जो चीज़ नोटिस की वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था। मीन्स द स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ दे यूज टू प्रोड्यूस देयर ओन न्यूज़पेपर, जो वहाँ पे इस्तांबुल में चल भी रहा था, एंड पीपल यूज टू रीड द न्यूज़पेपर। तो वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग हो स्टूडेंट की, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करते हो तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा लर्निंग होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो थियोरेटिकल नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये एक मेन पॉइंट है कि वो प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं और थियोरेटिकल को भी करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल के बाद यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट सो दैट यू कैन एक्चुअली नो कि वो जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई में एक्चुअली में कैसे वर्क कर रही है। सो दैट वाज द डिफरेंस। So, Suman, I'm asking you this question. जैसे Mushahid just touched upon the practical learning and the expect that वहाँ की universities में this was something which was very, very the students were in the practical learning. So, what is that one thing that you think if यहाँ पे we would start doing the same thing, or you think that this university has changed from the visits or the international leadership program, that SMIU is doing the same thing for from the course of that time, seeing at the other universities, and what you guys are bringing on from your exposure from that visit? वहाँ पे हमने जो देखा था ना, यूनिवर्सिटी ऑफ टर्की के स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के जो स्टूडेंट्स थे वो कैफेटेरिया में हम लोग का उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह हुआ था। तो दे गाइस वर टेलिंग अस कि कितनी ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी जो है ना मैटर करती है, कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं और दे ब्रिंग अप न्यू थिंग्स। मतलब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो उनकी क्रिएटिविटी इसी तरह से बाहर आएगी। दे वुड गेट अ चांस टू बी ओपन, और फिर ही हमें पता चलेगा कि बंदा कितना क्रिएटिव और कितना करता है। हमारे यहाँ आई गेस जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी तो वो हमारी क्रिएटिविटी पे ही दूंगी, क्योंकि हमारा यही होता है कि हम लोग बेसिक थ्योरीज लर्न करके उसी को इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसी के साथ चले जा रहे हैं, और वहाँ पर ये है कि वो थ्योरेटिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो बच्चे वो चीज़ें प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और उनका रिजल्ट वो रियली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली होता है, और हम लोग सिर्फ उसी नॉलेज पे बेस्ड हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट कि हम लोग को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ में हम चेंज इसी तरह से लाएंगे जब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सही, थैंक यू सो मच सुमन। कुरजलान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो आई एम प्रीटी श्योर नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम और इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम थिंग, गिविंग दैम दिस एक्सपोजर, गिविंग दैम द सेम प्रैक्टिकल नॉलेज। सो व्हाट डू यू थिंक हाउ वुड यू लाइक to take these things forward, or what is the next thing that you will suggest or you will see कि इससे ज़्यादा things could get better with the passage of time, just so that we can introduce more practical knowledge or more practical learning for our students? देखिए, इसके लिए हमने ये किया कि हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ हम विज़िट करते हैं, दैट इज़ नॉट द एंड एक्चुअली। हम उसके बाद उनसे कोलैबोरेशंस भी अपने इन्हांस के इस्टेब्लिश करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। जैसे अब ये यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, दे हैव ऑब्जर्व समथिंग इन द यूनिवर्सिटीज़, तो वो हम अपने साथ उनको जब कोलैबोरेट करते हैं तो वी आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ देयर प्रोसेसेस आर, हाउ देयर रिसर्चेस आर, एंड हाउ देयर एकेडमिक प्रोसेसेस, एक्चुअली द एकेडमिक जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। इस तरीके से जैसे हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वी स्टार्ट टू लर्न अबाउट द व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड वर्ल्ड वाइड एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, जब ये कोलैबोरेशंस हमारी इन्हांस होंगी, मैच्योर होंगी, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, लाइक डिफरेंट काउंसिल्स के साथ, डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि हम उसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी रिसर्च और एकेडमिक प्रोसेस को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो जाएँ इंटरनेशनली एट द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि वो जाएँ और टॉप लीडरशिप से मिलना और उनसे लर्न करना इज़ द समथिंग विच इज़ ट्रेमेंडस। ठीक है, लेकिन जो है इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं उनको हम तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब उनके साथ हम कोलैबोरेटिवली जॉइंटली हम उनके साथ किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं, और वो होंगे हमारे एग्रीमेंट एंड ए म्यूचुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है MOU साइन करने के बाद होंगे।
एंड वी हैव ऑलरेडी डन सो मच विद दैम। और उसके बाद हम जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, जॉइंट एकेडमिक प्रोग्राम्स उन पे भी वर्किंग कर रहे हैं। एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग द मैनी एकेडमिक प्रोग्राम विद द इंस्टीट्यूशंस वी हैव विजिटेड एंड द सून रिसेंटली अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी चाइना से भी कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हैं जिसमें हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं ऑन द इंटर्नशिप्स, ऑन द शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट एज वेल, जहाँ पर वो जा रहे होते हैं और वहाँ पर जाके वो स्टे कर रहे होते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 1 month एंड सो। तो वो वहाँ से वो सीख के आ रहे हैं। अगर इफ़ दे आर अडॉप्टिंग एन एनवायरनमेंट, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर प्रोसेसेस, तो वो यहाँ आके वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस में। सो वी आर प्रोवाइडिंग द सच अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर स्टूडेंट एज वेल एज टू आवर फैकल्टी मेंबर्स जो उनको सुपरवाइज करते हैं ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस। So it's basically a two-way thing, and Exactly. every party is involved and every stakeholder is involved in this. So मैं आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप एक पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट हुई. So what was it, what it was like when you find out that you finally get the chance to meet the president, or you are finally going to Turkey, or next day you're flying off. So what was this feeling like, or how were you feeling? How was everything? Like the selection process was indeed a rigorous process. और उसके बाद आप select हो गए and then you got a news कि सुबह को आपको 9 बजे जाना है, सेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ. You will be interacting with your prime minister one on one. You will be getting a chance to question. मतलब आप वहाँ बैठ के उनसे questions कर सकते हो and they are answering. So this experience is something you can just imagine. और फिर आप वहाँ जाकर देखते हो कि आपके लीडर्स वाकई में किस तरह से बात करें. टीवी पे देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड वॉचिंग देम लाइव इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो आप देखते हो कि किस तरह से आपके लीडर्स जो हैं वो रियल लाइफ में भी आपके क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर कर रहे हैं और आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो दिस एक्सपीरियंस वाज समथिंग यू कैन जस्ट राइट इन योर स्टोरी बुक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. Thank you so much, Suman. Thank you, Ms. Kuratlan. Thank you, Mushahid, for being the part of this show. And thank you so much, everyone, for watching. I am pretty sure कि आपको पता चला होगा कि सिंध मसूद इस्लाम यूनिवर्सिटी अपना नेशनल इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम किस तरह से, कितनी ट्रमेंडस एफर्ट्स होती हैं इसमें लोगों की. और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे बच्चों की एक्सपीरियंस हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी हर्ड योर सेल्फ. सो until next time, we'll meet you with with another topic. Allah Hafiz.